you come for direct selling. So direct selling has all the good things, all the ingredients for a country like India. At the same time, it's equally challenging, you know. So law of wasted effort, आपने नाम सुना होगा law of wasted efforts का. वो जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, जो कार्निवोर होता है, लायन या टाइगर, वो उनको एक ही बार में शिकार नहीं मिलता है. दे कीप ऑन हंटिंग 3, 4, 5 बार शिकार करने जाते, शिकार करते, 5 में से एक बार सक्सीड होते. ये नहीं कि 3-4 बार उनको प्रे नहीं मिला तो दे अबंडन, दे कीप ऑन ट्राइंग बिकॉज दैट्स देयर, यू नो, दे हैव टू सेल देयर मनी. तो डायरेक्ट सेलिंग में ये नहीं कि यू हैव ट्राइड 10 प्रोस्पेक्ट्स और सबने ना कहा तो वहां पर आप छोड़ नहीं देते. So it's quite a challenging job. It's not easy, and that is where we need strong hand-holding from the state government, particularly the Consumer Affairs Department. You know, because this is being driven by consumer in focus. So we direct selling entities assure you that we produce quality products. We do not sell fakes. We do not sell smuggled goods. We do not sell counterfeits. We sell original products. So that's the challenge direct selling industry has to take. The quality of the product has to be, very, very. I mean, that has to be the focus. If you don't have a, because, as was said, it's for the consumer, by the consumer, of the consumer, direct selling. And product is the key. So without a good product, no direct selling can grow. And today we are 2 billion industry. I have been telling umpteen times in Hyderabad itself, this might be my 10th or 11th talk, so we need to go at least 20 billion immediately, as soon as possible. Why I am saying so is India is 2.5% of the global geographical area, but our population is 20% of the world. So in all industrial manufacturing, that's from 2, 3, 4, 5%, let's go into 20%. 20% can't come overnight. So 2 का 4 करिए, 4 का 8 करिए, $8 billion का तो बनेगा. So with the support of the state government, I hope direct selling industry in Telangana has a bright future. Thank you so much for the opportunity. President of the NC, Vice President of the NC, President of FITCI, and direct selling industry in general for the love and affection shown to me and for the opportunity. NC means sustainable direct selling. Thank you. थैंक यू सो मच सर. वैसे हेम कुमार पांडे जी, आप हैदराबाद आ चुके हैं. आपने हैदराबादी भाषा सुनी है? अच्छा, तो आपको हम बता देते हैं एज एन हैदराबादी मी टू. कितने हैदराबादी हैं यहाँ पे? हम बिगड़े भी हैं, हम सुधरे भी हैं, लेकिन जिद पे आ जाए तो हम अपने अब्बा जान की भी नहीं सुनते. ये जिद तो हमने कर ली है कि डायरेक्ट सेलिंग को इकोसिस्टम बनाना है, एंड वी हैव टू मेक अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम. What do you say, Hyderabadis? Right. So moving ahead, ladies and gentlemen, आगे बढ़ते हुए, we have an overview on building a sustainable direct selling ecosystem by our very own Dr. Sanjeev Kumar ji, President, Association of Direct Selling Entities of India. सबको नमस्कार. टाइम की कमी के कारण आई विल टेक ओनली 5 minutes, सर. ओनली 5 minutes. मुख्य अतिथि श्री जयसंजन सर, IAS विशेष मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य और IT, तेलंगाना सरकार. सम्मानित अतिथिगण श्री DS चौहान जी, IPS प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और आयुक्त नागरिक आपूर्ति, तेलंगाना सरकार. सम्मानित अतिथि श्री हेम कुमार पांडे जी, पूर्व सचिव उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार. सर, थैंक्स फॉर कमिंग. और मैं आपको बताता हूँ कि जेस सर से मेरी मुलाकात इंडो UK बिजनेस मीट लंदन में हुई थी. जब मैंने जेस सर को रिक्वेस्ट की थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो जेस सर ने आश्वासन दिया था
कि मैं आप लोगों की बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मैं आप लोगों की इंडस्ट्री के लिए प्रयास करूंगा अच्छे से अच्छा काम करने की। और आज सर आपके सामने थैंक यू सर। लेट मी डिफाइन इन अ शॉर्टकट ऑफ ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सर हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई कास्ट फैक्टर नहीं होता, कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती, कोई इकोनॉमिकल कंडीशन मैटर नहीं करती, कोई जेंडर मैटर नहीं करता। और सोसाइटी का कोई भी वर्ग आके हमारी इंडस्ट्री में काम करके खुद को सक्सेस कर सकता है और अपने परिवार के लिए एक अच्छी आर्थिक स्थिति पैदा कर सकता है। सर हमारा कंट्रीब्यूशन जो डायरेक्ट सेलिंग का सोसाइटी के लिए है वो अपने आप में एक अद्भुत है, उल्लेखनीय है। हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग रो आते हैं सर, जिन्हें ना एजुकेशन होती है, अच्छे स्टेटस के लोग भी आते हैं, लोअर मिडिल क्लास सब तरह के लोग आते हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है सर कि हम उनका स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनको सेल्स स्किल्स डेवलप करते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड टफ जॉब है विदाउट MBA मार्केटिंग, MBA मार्केटिंग, लीडरशिप स्किल्स, हाउ टू मैनेज द टीम, क्योंकि विदाउट टीम दिस इज नॉट पॉसिबल टू डू डायरेक्ट सेलिंग सर। तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना, वुमेन एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं सर। जो लोग बिल्कुल लूज कर चुके हैं लाइफ में कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनको हमारा मॉडल, हमारी एजुकेशन, उनका मेंटल हेल्थ डेवलप करते हैं, उनको ये महसूस कराते हैं अभी भी तुम में कुछ है और तुम चाहो तो इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। बहुत बड़ी बात मैं सर आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट सेलिंग की लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं है और वो होना चाहिए। न्यूट्रिशन को पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। व्हाई न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी, न्यूट्रिशन सर 45 इयर्स पहले डायरेक्ट सेलिंग ने इंट्रोड्यूस किया। ओबेसिटी प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड सर, ओबेसिटी मेजर प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रन कर रही है सर। ओबेसिटी का 40 साल से कि ओबेसिटी हमें, हमारे लिए, अपनी हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस है और ओबेसिटी से कैसे बचा जाए। इवन सर आज राइस ब्रेन ऑयल, रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल का भी आज हम कहते हैं इंट्रोड्यूस किया था, वो भी डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन राइस ब्रेन ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा है, उससे पहले कोई राइस ब्रेन ऑयल नहीं जानता था। तो ये बड़े बड़े काम इसने इंडस्ट्री ने किए। और सर 80% इंडस्ट्री हमारी सर वेलनेस पे ही काम करती है। 80% वेलनेस, लोगों की हेल्थ कैसे अच्छी रहे, लोग हेल्दी कैसे रहे, क्या अच्छा खाएं, क्या छोड़े, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कौन से नेचुरल रेमेडीज से आपको ठीक होना है। ज्यादातर 80% हमारी इंडस्ट्री की कंपनियां वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रही है। आई एम राइट। और इवन सर आयुर्वेद को भी एक बहुत बड़ा एक्सपोजर इस इंडस्ट्री ने दिया है। बाबा रामदेव के बाद अगर आयुर्वेद के लिए किसी इंडस्ट्री ने काम किया तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने काम किया। और इससे क्या हुआ सर, जो बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग करती थी वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेकर आई, आज उन्हें भी इंडिया में काम करना तो आयुर्वेद प्रोडक्ट उन्हें भी इंट्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं। And people get lot of benefits in this industry sir, health benefits। उसके बाद सर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स का जो सेल्स होता है सर, पहले हमारा डायरेक्ट सेलर इन्विटेशन लेता है, फिर प्रोडक्ट का डेमो करता है, फिर सेल्स करता है। और जो प्रोडक्ट परचेजर है सर सभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, ओनली 10%, 90% कंज्यूमर ही रहते हैं, क्योंकि उनके अपने कोई काम है, अपनी फैक्ट्रीज है, अपने बिजनेस है, अपने जॉब से। हमारा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी के साथ काम करता है वो 10 आउट ऑफ 100 काम करते हैं। ये बताना मुझे जरूरी था। और अब जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग जो है सर, जो हमारे साथ होता है कि हमें तकरीबन 2 ब्लेम हम पे लगते हैं सर। 2 ब्लेम हमेशा लगते हैं कि मनी रोटेशन करते हो और दूसरा लगता है कि प्रोडक्ट महंगा बेचते हो। तो मैं इसका जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा सर कि मनी रोटेशन करने वाली कंपनियां 40 साल चल ही नहीं सकती। मनी रोटेशन मीन्स है सर फिक्स्ड इनकम का कमिटमेंट। मंथ में आप हमें 1000 रुपए दो, हम मंथ में आपको 2000 देंगे या 5% देंगे, 10% देंगे। दैट इज कॉल्ड मनी रोटेशन। हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है सर, हम लोग मनी रोटेशन करके 40 साल 45 साल कैसे चलेंगे। आज हमारे इंडिया में कंपनियां हैं जो 24 साल 28 साल से चल रही है। ये मनी रोटेशन नहीं है सर, जो बीच का मार्जिन था, जो एम्प्लॉयमेंट सेल्स का जो मार्जिन था, जो एम्प्लॉयमेंट का मार्जिन था, एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा था, वो हम लोग इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। इसीलिए सर हम 40 और 45 साल से सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं तो 2 साल के अंदर जो ये चिट फंड कंपनियां ये बंद हो जाती है और यही स्ट्रगल सर हम लोगों की है। और यही आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग हमें आप लोगों से चाहिए कि इन लोगों से हमको अलग कर दो सर, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। तो सर तेलंगाना में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज बहुत खुशी है कि आप आए और आप आज हमें सपोर्ट करने की मॉनिटरिंग कमेटी एक मैकेनिज्म की बात चल रही है। सर तेलंगाना में बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं,
और बहुत एम्प्लॉयमेंट और पढ़े लिखे लोग हैं। अगर इन्हें डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छे इकोसिस्टम के साथ करने का मौका मिले तो तेलंगाना भी अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग में प्रूव कर सकता है सर। बस लास्ट पॉइंट है सर मेरा, दुख की बात यह है सर कि हमारे इंडस्ट्री में हम ये चाहेंगे कि आप कोई भी मैकेनिज्म बना दीजिए। हम पहली इंडस्ट्री है, आपसे कहते हैं हमें रेगुलेट करो सर, हमें रेगुलेशन दे दो, जो आप कहेंगे हम करेंगे, बस हमें चिट फंड से दूर करें। सर हमारे साथ क्या हुआ सर, हजार करोड़ के टर्नओवर करने वाली हमारी कंपनी सर यूएस में सर काम शुरू किया, यूएस में बड़ा बिजनेस कर रही है, और तेलंगाना में एक छोटा सा 12,000 रुपए का एक केस उसमें बनाया गया और कंपनी पूरी कोलैप्स हो गई सर। 1000 करोड़ से 100 करोड़ पे आ गए, और ये इम्पैक्ट सर सिर्फ तेलंगाना में नहीं पड़ता, तब ऐसा होता तो पूरे इंडिया में इम्पैक्ट पड़ता है। यार वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बंद हो गई और उसकी एफआईआर हुई, ये हुआ। लेकिन सर एक बड़ी बात यह कि आज तक जो भी एफआईआर ऐसी हुई है, जो भी पुलिस ने की है, एक में भी सजा नहीं हुई सर। कोर्ट से सबको क्लीन चिट मिली है क्योंकि दे आर द प्रोडक्ट बेस्ड। कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दी है सर क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी। कोर्ट में किसी को सजा नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री का कोलैप्स हुआ, कंपनी कोलैप्स हुई और हमारे पूरे इंडिया में इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव गया। तो सर हम तेलंगाना गवर्नमेंट से, आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आपका आशीर्वाद मांगते हैं। वी नीड योर ब्लेसिंग सर, वी नीड योर ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you, thank you. And ऐसे एक और बात याद आई। हाँ, यहाँ के हमारे अल्लू अर्जुन बहुत फेमस है, वो कहते हैं झुकेंगे नहीं और हम कहते हैं कि रुकेंगे नहीं। So, moving ahead, ladies and gentlemen, as our guest of honor have a very short time, and also our chief guest, आगे बढ़ते हुए, let me invite on stage Mr. Shri D.S. Chauhan ji, Principal Secretary to Government, Consumer Affairs, Food and Civil Supplies, Commissioner of Civil Supplies. మీలాగా నేను కూడా తెలుగు మాట్లాడవచ్చు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవచ్చు, కాబట్టి ఈ మూడు మిక్స్ చేసి మాట్లాడు. ఐఎమ్ సారీ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు cut in between and then come here. There is a engagement, but I'll be back. You came, you saw, you conquered. That can be said about the direct selling industry. You have taken many people by surprise. Suddenly, one day, one fine day, it might have come a century back. But then the kind of growth, exponential growth we have seen.